Hey everyone, welcome to class 8. Today we are moving to our next fundamental right. And what is that? That is right against exploitation. It includes Article 23 and Article 24. So, without wasting time, let us start our Article 23. What is Article 23? It protects an individual against any exploitation. How does it work? Trafficking in human beings. Trafficking means selling and buying human beings for immoral purposes. Immoral means wrongful purposes, like you are selling a human being as a commodity. So it is considered illegal and it is totally prohibited. What is next? Next is forced labor done without payment of any wages in return. What are wages? Wages means regular amount of money that you earn for a week's work. And what is bonded labor? Bonded labor, when such a service is rendered on a lifelong basis, it is termed as bonded labor. Suppose any employer give high rate of interest loan to its workers and whose entire family then labor at low wages to pay off the debt. डेप्ट मीन्स होता है कर्जा, ठीक है. सपोज किसी वर्कर ने, किसी लेबर ने, ठीक है, इसमें आप चाइल्ड लेबर भी ले सकते हो, जो भी पर्सन जो फोर्सफुली वर्क कर रहा है, ठीक है, किसी के अंडर प्रेशर में आके कर रहा है. क्यों? हो सकता है उसने कोई लोन उसने बोरो किया हो, जैसे कि एग्रीकल्चर लोन, मैरिज लोन, एजुकेशनल लोन. तो वो लोन का अमाउंट रीपे करने के लिए वो क्या कर रहा है, उसके अंडर में वो वर्क कर रहा है. और समटाइम्स कभी कभी तो बहुत लो वेजेस मिलती हैं और कभी कभी वो विदाउट पेमेंट भी करता है, तो वो उससे बॉन्ड हो जाता है. तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं बॉन्डेड लेबर. तो ये कौन सा आर्टिकल था? ये आर्टिकल 23 था. नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 24. इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 and it is strictly prohibited. दूसरा, adolescents between 14 and 18 cannot be employed in any hazardous occupation like mines, construction site, factories, ठीक है. बट इट डज नॉट प्रोहिबिट एनी हार्मलेस वर्क, कि अगर कोई बच्चा हार्मलेस वर्क नहीं कर रहा है तो उसको ये प्रोहिबिट नहीं करता है. सिर्फ एक किसको प्रोहिबिट करता है? माइंस हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, ठीक है, जो हैजार्डस जॉब है ये वहाँ पे प्रोहिबिट करता है. कौन सी एज ग्रुप से? 14 से 18 तक, एडोलसेंट एज. So what about next freedom, fundamental right is right to freedom of religion. It includes articles 25 to 28, but coincidentally in this 27th article is not mentioned, so I am showing you in this image. Please watch it. So what is article 25? Every person has the right to profess, practice and propagate the religion he or she believes in. It means every citizen of our country have the freedom to choose or follow any religion. Like you can propagate your religion by using loudspeakers, but if any religion practices disturbs public peace, then it can be stopped. So don't think you can misuse your right. Okay, now what is next article? Article 26, that every religious community has the right to establish institutions for religious and charitable purposes and to manage its affairs. Means it gives the right to establish institutions, but these institutions are not funded or maintained by the state. Institutions such as charitable purposes as well as religious, ठीक है, this right is reserved and confined to Indian citizens only, not foreigners. ये right सिर्फ Indian citizen तक ही confined है, ये foreigners को नहीं दिया गया है. रीज़न क्या है कि अदरवाइज दे विल प्रोपोगेट देयर रिलीजन. हाँ, जैसे कि पास में क्या करते थे, मिशनरीज आए थे ना हमारे कंट्री में, उन्होंने क्या किया था, अपने रिलीजन को स्प्रेड करना स्टार्ट किया था. और फिर व्हाट वाज देयर पर्पस? देयर पर्पस वाज टू कन्वर्ट आवर रिलीजन, ठीक है. सो दैट इज़ वाई दिस फंडामेंटल राइट इज़ नॉट गिवन टू फॉरनर्स, दिस इज़ गिवन टू ओनली एंड ओनली इंडियन सिटीजन्स. नाउ व्हाट इज़ आर्टिकल 27? इट मीन्स it prohibits the levying of a tax, the proceeds which are meant specifically for payment of expenses for the promotion or maintenance of any religion, particular any religion, ठीक है. It means no taxes or funds can be collected to promote any religion under any circumstances. This article states that no citizen has to pay any sort of tax or payment to the state for the purpose of maintaining or practicing a specific religion. Actually अगर
एक स्पेसिफिक रिलीजन ही टैक्स पे करेगा तो सिर्फ उसी रिलीजन का क्या होगा, अपलिफ्टमेंट होगा, ठीक है। तो फिर ये अगेन यहाँ पे क्या होने लगेगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा दूसरे कास्ट के साथ, दूसरे रिलीजन के साथ, ठीक है। इसलिए ये इसको क्या करता है, ये आर्टिकल क्या कहता है कि किसी भी सिटीजन से आप किसी भी तरीके का टैक्स या पेमेंट कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ आर्टिकल 28, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द इम्पार्टिंग of religious instructions in schools run by the state or receives aid from the state. aid means होता है help. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं स्कूल्स को, ठीक है। नंबर 1, इट मीन्स इफ़ एनी कॉलेज दैट इज़ टोटली गवर्नमेंट फंडेड, ठीक है, पूरा गवर्नमेंट से चल रहा है, गवर्नमेंट के फंड से चल रहा है, इन दैट रिलीजियस एजुकेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, ठीक। ये तो पहली कैटेगरी होगी। व्हाट इज सेकंड कैटेगरी, इफ़ एनी स्कूल और कॉलेज गेटिंग फंडिंग फ्रॉम अ स्टेट पार्शियल मीन्स कि 25% या 30% या 50% स्टेट हेल्प कर रही है वहाँ पर, देन इट कैन इम्पार्ट रिलीजियस एजुकेशन, बट दैट रिलीजियस एजुकेशन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू स्टूडेंट स्टडिंग इन दैट स्कूल। अगर उस स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आप उसको कंपेल नहीं कर सकते हो कि वो उस रिलीजियस एजुकेशन को ऑप्ट करें। कहाँ पर, जहाँ पर पार्शियल जो है गवर्नमेंट का फंड जो है स्कूल को मिल रहा है, ठीक है। पहली कैटेगरी जहाँ पे 100% फंडेड है वहाँ पर नो रिलीजियस एजुकेशन कैन बी इम्पार्टेड। दूसरा जहाँ पर पार्शियल है यानी कुछ पोर्शन दे रही है गवर्नमेंट, वहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्ट तो कर सकते हो आप, बट यू कैन नॉट कंपेल या यू कैन नॉट फोर्स स्टूडेंट्स टू ऑप्ट दैट सब्जेक्ट। Now last category, institutes which are set up for any religious purposes and have no government support, the students can be compelled to take part. जो स्कूल्स में टोटली क्या है, रिलीजियस पर बेस है, दूसरा वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, मीन्स गवर्नमेंट वहाँ पर कोई एड नहीं दे रही, फंडिंग नहीं दे रही है, वहाँ पर स्टूडेंट्स को आप कंपेल कर सकते हो कि उस रिलीजियस एजुकेशन में क्या करें, पार्ट लें। नेक्स्ट राइट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इट कंसिस्ट 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। सो बिफोर मूविंग फर्दर, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस and diverse cultures. In order to protect minorities and maintain this diversity, the Constitution provides for cultural and educational rights. Minorities को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या किया, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी दे दिए, ठीक है, ताकि जो हमारे की डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। दीज राइट्स एड्रेस द कंसर्न ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। सो आर्टिकल 29, every section of the Indian population has the right to conserve their script, language and culture. It means it protects the interest of the minorities by making a provision that any citizen having a distinct language, script or culture, they have the right टू कंजर्व द सेम एज मेजॉरिटी। जैसे मेजॉरिटी के पास राइट्स थे ना कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, तो वैसे ही हमने यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को क्या दी है, प्रोटेक्शन दी है, ठीक है। इफ़ सच सेक्शंस ऑफ सिटीजन डिज़ायर टू प्रिजर्व देयर ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, द स्टेट वुड नॉट स्टैंड इन देयर वे। और अगर ये जो हमारे ग्रुप है, जो माइनॉरिटीज़ थे, अगर ये अपने कल्चर को, अपने स्क्रिप्ट को, लैंग्वेज को क्या करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं, तो इसमें स्टेट क्या नहीं करेगा, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 29 क्लॉज 1 जो है, एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फंडेड बाय द गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिनाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रीजन और लैंग्वेज। कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पर जो गवर्नमेंट फंडेड होगा, ठीक है, तो वहाँ पर भी किसी भी तरीके के ग्राउंड्स पर जो है रिलीजन, कास्ट या रीजन या लैंग्वेज के बेस पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसको मैंडेटरी करता है, इसको, ठीक है, कंपलसरी करता है। नेक्स्ट, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज़ द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इट चॉइस। दिस इज़ अवर लास्ट आर्टिकल, दैट इज़ आर्टिकल 30, कि सोसाइटी के हर सेक्शन को क्या देता है, ये राइट देता है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को क्या कर सकता है, स्टैब्लिश कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था कि जब ऐसा आर्टिकल पास हुआ था, तो ऐसा जब राइट मिल गया था लोगों को, तो उस टाइम मदरसास और बहुत सारे
मदरसास और क्रिश्चियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एकदम से रैपिड इंक्रीज आया था. इफ़ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस ऑलरेडी दिस. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो